bite of, I believe, Congress MLA Virendra Singh that we have also gotten. Let's listen in to that first. ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होता है। 1914 में नरेंद्र जी मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के हिंदुस्तान पे काबिज हुए, उन्हें बड़े बड़े वादे किए, उसमें एक नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी वालों ने कहा मुझे 100 दिन का अवसर दो, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, सारी चीजें खत्म कर दूं, मुझे 100 दिन का मौका दो। काला धन का तो पता नहीं, काला लायक, पीला लायक, हरा लायक, कौन सा कर लायक, लेकिन जो माताओं गुजड़ी में जो पैसा परिवार की संकट के लिए बचा के उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने जरूर सबके सामने ला के रख दिया। उसके बाद में लोगों को लगा कि अभी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद में लोगों को लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर मामले में फ्लोट है। लेकिन अजीब सहयोग हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसपे मिलिट्री की ट्रेनें जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे चक्कर दौड़ते हुए आती है और उसपे हमारे 44 चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद में नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकल में थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है, बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देंगे, नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी त्रिपुर जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी, पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। तो मैं आप सब लोगों का जो सारे दातार क्षेत्र से मंडा से लेकर इस देशपुरा गांव तक जितने लोगों ने हेमाराम जी का जो मान सम्मान किया, स्वागत। And that in fact was the Congress MLA Virendra Singh talking about the forces and saying that in fact these are soldiers that were martyred for political gains. Let me once again go across to my colleague Madhurima, who's continuing to join us on the broadcast. Madhurima, it has been somewhat of a trend of the Congress party as well, that they keep insulting the forces. There are leaders who make such statements. What more are you picking up with respect to the political reactions to this kind of a blasphemous statement coming in from Congress leaders? Well, Priyanka, we just heard that how without any hesitancy Mr. Virendra Singh made such a brazen statement in front of a huge audience there in Rajasthan, where he is very brazenly saying that the political that the martyrdom was a part of a political conspiracy. Now that is a huge statement to make, and this has been the attitude of the Congress for a very long time, where they have been doubting. May it be the surgical strike, may it be any effort made by our armed forces, the Congress has been one of the first parties to question their effort, and once again that the Congress is at it again, against which the BJP has attacked very in a very aggravated manner, and said even the Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, while speaking to Republic, has asserted that it is a matter of shame that with all these assembly elections in the 5 states
states inching closer, Congress is resorting to such laws where they are using now the forces, they are using the cutouts of the late CDS Bipin Rawat, they are using the cutouts of soldiers in their rallies at this time just to mint the political benefit. And that is what the Uttarakhand CM also came out and said, that now initially when the forces did something, when they exhibited their valor, the Congress party was not there to applaud them but to question their efforts. And now when the elections are inching closer to just mint political benefits, to earn some brownie points with the electorates, the Congress is at it again and is using the forces just to mint political mileage. And that is the reaction that such endeavors of the Congress is enthralling from all political quarters, where everybody is bashing the Congress for using the armed forces and their valor and their relentless act of service that they do for the nation. Well, yes, to mint Madhurima, political in fact, you're breaking down those details for us, giving us that perspective, but the pictures are really speaking for themselves. We see a massive cutout of General Bipin Rawat along with Rahul Gandhi, and then we have the Congress MLA Virendra Singh making these kind of statements. Let's listen in once again as to what he had said in this rally. ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होता है। 1914 में नरेंद्र जी मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के हिंदुस्तान पे काबिज हुए, उन्हें बड़े बड़े वादे किए, उसमें एक नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी वालों ने कहा मुझे 100 दिन का अवसर दो, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, सारी चीजें खत्म कर दूं, मुझे 100 दिन का मौका दो। काला धन का तो पता नहीं, काला लाए, पीला लाए, हरा लाए, कौन सा कर लाए, लेकिन जो माताओं गुजड़ी में जो पैसा परिवार की संकट के लिए बचा के उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने जरूर सबके सामने ला के रख दिया। उसके बाद में लोगों को लगा कि अभी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद में लोगों को लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर मामले में फ्लोट है। लेकिन अजीब सहयोग हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की गेंदबाजी जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे चक्कर दौड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद में नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकलनी थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है, बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से घटन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देंगे, नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी दिलपत जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी, पता नहीं अजीब सहयोग है। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। तो मैं आप सब लोगों का जो सारे रतलाम क्षेत्र से मंडा से लेकर इस देशपुरा गांव तक जितने लोगों ने हेमाराम जी का जो मान सम्मान किया। MLA वीरेंद्र सिंह ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एंड वीरेंद्र सिंह जी, फिलहाल हमने पूरी बाइट सुनी जो आपकी स्पीच थी, उसमें आपने ये कहा है, एक तरह से इंसल्टिंग तरीके से ये कहा है कि our forces once stating that the soldiers were martyred for political gains. आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है पूरी कंस्पिरेसी थी? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक संभावना बताई थी। एक्चुअली अजीब से सहयोग हुए हिंदुस्तान में, ऐसे घटनाक्रम हुए, उनके बारे में बोला था इनोसेंटली कि भाई ये घटनाक्रम चुनाव के समय क्यों हुए हैं।
आप मीडिया में हो, आपने रात दिन आप मीडिया देखते हो, आपने सारे घटनाक्रम आपको मालूम होते हैं। मैंने एक शहीद के प्रोग्राम में था, मैं शहीद को श्रद्धांजलि मूर्ति राउंड में था। हमारी वीर भूमि है ये दत्तारामगढ़ जो है, ये सिक्योरिटी इलाका जो कहता है, हमारे कितने शौर्य चक्र, परवीर चक्र, कितने चक्र होते हैं ना मिलिट्री के अंदर, वो सब हमने हासिल किए हुए हैं। वहां पे मैंने इतना कहा था कि हमारी फौजी भाई है, शहादत से नहीं डरते हैं, लेकिन पीठ पे गोली खाने के बजाय छाती पे गोली खाना मंजूर कर सकते हैं वो। लेकिन हमारे फौजी कॉन्फ्रेंसी में मर रहे हैं। उसलिए मैंने ये कहा था कि फौज को फौज के तरीके से बॉर्डर पे लड़ाओ, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कहीं। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। मैंने फौज के, हम तो फौजी हैं, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग फौजी हैं, हमारा पूरा समाज फौज के से जुड़ा हुआ है। हम किसान और जवान के बेटे हैं सारे के सारे, तो इसलिए हम तो जवान और किसान की बात करेंगे। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ बोलेंगे, उसके लिए जो मंच मिलेगा उसमें बोलेंगे, हमारी आवाज उठाएंगे हम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी वीरेंद्र सिंह जी, एक और सवाल है आपसे। साथ ही साथ हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी का एक कटआउट लगा हुआ है इस रैली में, और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत का भी कटआउट लगा हुआ है, उस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है। साथ ही साथ आपका ये स्टेटमेंट बाहर आ रहा है, क्या आपको लगता है ये सही है फिलहाल इस तरह के स्टेटमेंट्स बाहर करना? नहीं, रावत साहब का कहाँ लगा था कटआउट? कहाँ लगा था? हमारे पास फिलहाल ये विजुअल्स चल रहे हैं सर ऑन एयर, अगर आप देख रहे हैं। फिलहाल इस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई किस तरह से एक कटआउट्स को राहुल गांधी और जनरल बिपिन रावत के कटआउट्स को साथ में लगाया गया। तो नेचुरली हमारे तो सबसे बड़े सेनाधिकारी हैं, सबसे बड़ा सेनाधिकारी है, तो उनका सम्मान करते हैं। उनकी जो भी हुई है, जो शहीद हुए हैं, तो उनको हमने तो श्रद्धांजलि दी है। हम तो हर फौज की, हर आदमी को, हमारे तो लगते ना, एक मेले लगते हैं यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे है वो एक गाना भी है ऐसा कुछ, ये जहाँ पे पता नहीं, इसमें याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हमारी तो सिक्योरिटी इलाका है, उसमें फौजियों का इलाका है। हम तो सारी सेना में आप देखो, शौर्य चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, सारे भागे, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, सारे जितने भी आते हैं हमारी सिक्योरिटी, हमारे परिवार के लोग हैं सारे के सारे। और हमारी वेदना थी, कोई वेदना नहीं है। मैंने तो बोला कि इसको, फौज को राजनीति से दूर रखो, इतना मैंने समाज को मैसेज दिया था। मैंने किसी सरकार को नहीं दिया, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया। मैं तो यही चाहता हूँ कि फौज समाज से दूर रहे, समाज से नहीं, राजनीतिक पार्टी से दूर रहे, यही मेरा